So Glossy, I'm back with my, I think so, fifth video, fertilization in pregnancy. Yesterday I've studied about the female genital part and male genital part. Now you're going to study fertilization in pregnancy. The sperms discharge into the vagina during the sexual intercourse, travel up to the vagina and uterus and reach to the fallopian tubes. See, after the sexual intercourse, the sperm will travel to the vagina and to the uterus and reach to the fallopian tube. It will reach to the fallopian tube. See, this is the fallopian tube, finger-like projection, and it is here that the fertilization takes place. It is the place where the fertilization takes place. One of the sperm fuses with the ovum. The sperm, the male sex cell, is going to fertilize with the female sex cell. The zygote, the sperm, travel down to the uterus. When they are going to fertilize with each other, they are going to travel down to the uterus. See, this is the uterus. No, it is not going inside. It will be somewhere here. And the zygote, the sperm, travels down to the uterus and gets attached to its wall. This myometrium wall, it is going to attach to this wall. It divides separately to form the embryo. When the embryo starts looking like baby, it is called fetus. What is going to happen? So this is a structure of sperm, tail, head, the main nuclear part, nucleus and DNA and ribosomes are going to be present in the head part, tail. It's going to fertilize with the egg, and the nucleus, just this part, is going to get inserted inside this female sex cell. मीन्स ओवम में सिर्फ यही स्पर्म का सर ही जाएगा, टेल नहीं जाएगा. Then only one sperm is going to fuse with the ovum, and in certain cases when there are twins, what happens when there are twins, then more than two sperms get fertilized with that ovum. So that are the rarer cases, but there is a race of million sperms and only few get chance to get fused with the female sex cell. Okay, then the sperm, then you can see the one sperm has come in contact. One sperm comes in the contact with the egg. This egg is the female sex cell ovum. Then the sperm's nucleus fuses with each egg's nucleus. स्पर्म का जो ये न्यूक्लियस है ये फ्यूज कर जाएगा एग के न्यूक्लियस के साथ. ये देखिए हेड पार्ट सिर्फ जाएगा, टेल बाहर रह जाएगा. देन व्हाट हैपन, द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड ज़ाइगोट डिवाइड्स. डिवीजन हो रहा है, सब कुछ आपको बेबी जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगे तो तब वो ज़ाइगोट होगा. तो जब वो बेबी जैसा स्ट्रक्चर दिखने लगे तो उसको वो ज़ाइगोट से फीटस में होने लगा, डेवलपमेंट होगा. The muscular wall of the uterus have a rich supply of blood vessels which nourish the growing baby. This wall of uterus have a बहुत ही ज़्यादा खून की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं जिससे बेबी को नरिशमेंट मिलती है. एम्ब्रियो कह लिया फीटस, इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो, और जब उसके लिम्स निकलने लगे, समवॉट एक बेबी जैसा स्ट्रक्चर लगने लगे, देन इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड फीटस. न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, अदर सब्सटेंस पास फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द बेबीज ब्लड थ्रू द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लासेंटा. प्लासेंटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिससे बेबी को, जो कि अभी डेवलप हो रहा है, एम्ब्रियो है, उसको ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है. विच इज़ लिंक टू द एम्ब्रियो बाय द एम्ब्लिकल कॉर्ड, जो कि एम्ब्लिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है बेबी से. वो उस स्ट्रक्चर से, प्लासेंटा से बेबी एम्ब्लिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है जिससे उसको इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वॉट एवर द एसेंशियल थिंग्स अ चाइल्ड रिक्वायर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, इट इज़ गेटिंग थ्रू this placenta. The placenta also carries carbon dioxide and waste material from the baby's body into the mother's body. All the things are interconnected to the mother's body. That's why mother is regarded the biggest position in this world, high and biggest position. तो मदर की बॉडी से उसको इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे क्योंकि वो मदर की यूट्रस से अटैच्ड होगा, और जो भी वेस्ट या डिस्चार्ज होगा बेबी का वो उस प्लासेंटा की हेल्प से, एम्ब्लिकल कॉर्ड की हेल्प से वेस्ट मटेरियल जो होगा या कार्बन डाइऑक्साइड जो बच्चा रिलीज़ करेगा इन द वूम, वो क्या होगा, मदर के बेबीज, फ्रॉम द बेबीज़ ब्लड टू मदर्स ब्लड ट्रांसफ़र हो जाएगा. विद इन द यूट्रस द बेबी सराउंडेड बाय प्रोटेक्टिव सैक कॉल्ड एमनियोटिक सैक.
बेबी जो होता है, दिस यू कैन सी प्लासेंटा से कनेक्टेड है थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। ये मदर का पूरा यूट्रस है। दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि बेबी के नेवल से कनेक्टेड होता है, तभी छोटा बेबी होता है। यू कैन सी दैट द नेवल हैज़ बीन, उस पर कुछ काट के उसको किसी पिन से स्टिक कर देते हैं, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड से उसका नेवल जुड़ा होता है, तो वहीं से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलती है। देन दिस इज एमनियोटिक सैक, हेड ऑफ फीटस, यू कैन सी दिस वजाइना। अम्बिलिकल कॉर्ड ये होता है, ये एमनियोटिक सैक है। एमनियोटिक फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है, वो जो कि बेबी को जर्क से बचाता है कि कहीं भी जर्क लग जाए मदर को तो इसको कोई डैमेज ना हो। Within the uterus, the baby is surrounded by a protective sac, amniotic sac, which contains amniotic fluid. Amniotic sac जो होता है उसमें amniotic fluid होती है। This fluid, ये fluid एक कुशन की तरह एक्ट करती है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम ना हो बेबी को, अगर जर्क लग जाए या कहीं मदर को कहीं चोट लग जाए तो इस बच्चे को कोई डैमेज ना हो, इस वजह से amniotic fluid होता है। ये फ्लूइड एक्शन क्वेश्चन की तरह काम करता है। द बेबी ग्रोज इन साइड द यूट्रस फॉर अबाउट 9 मंथ्स लगते हैं इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, फ्रॉम अ सिंपल एग टू बिकम अ फुल डेवलप्ड फीटस। ठीक है, एम्ब्रियो नहीं है ये, फीटस है, बिकॉज इट हैज़ फुली डेवलप्ड। The baby grows inside the uterus for about 9 months, a period referred to as pregnancy. उस 9 month को हम pregnancy कहते हैं। At the end of pregnancy, the wall of the uterus goes through contraction to let the baby out. During the later stage of pregnancy, what happens? The wall of uterus gets contracted to get this baby out. The amnion membrane or the amniotic sac bursts. The baby is pushed out through the vagina by the contraction of uterus. Sometimes two ova mature at the same time. They may get fertilized simultaneously, resulting in the birth of twins. I was telling you कि कभी कभी दो स्पर्म्स न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, दो स्पर्म जो होते हैं फर्टिलाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ट्विंस बेबी मिल सकते हैं। ठीक है, वो भी केसेस होते हैं साइमल्टेनियसली बर्थ ऑफ ट्विंस। सच ट्विंस आर नॉन आइडेंटिकल्स और फैटर्नल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होंगे? जो एक ही टाइम पे, मतलब 1-2 मिनट के फासले का उनका बर्थ टाइम डिफर करता हो, बट उनकी शक्ल एक जैसी नहीं की। और फैटर्नल ट्विंस जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उनकी शक्ल मिलती होगी, बट 1-2 मिनट का, 1-2 सेकेंड का फ़र्क होगा उनकी बर्थ में। दे लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ट्विंस आर बॉर्न ऑल्सो इफ़ द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स इनटू 2। अब ये नहीं है कि आपको 2 स्पर्म इसमें फर्टिलाइज़ करना ज़रूरी है, एक के साथ एक और स्पर्म नहीं। कभी कभी क्या होता है, एक ही स्पर्म इसमें गया एक्सेल, फीमेल एक्सेल में, और फीमेल एक्सेल ने डिवीज़न शुरू कर दिया, फीमेल एक्सेल 2 में डिवाइड हो गई, तो 2 हमारे फीटस बन सकते हैं, 2 हमारे एम्ब्रियो बनेंगे, तो 2 बेबीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ट्विंस आर बॉर्न इफ फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद भी अगर डिवीजन हो रहा है तो भी ट्विंस बन सकते हैं। सिंस दे अराइज ऑन द सेम सेल, द ज़ाइगोट डेवलप्स इनटू आइडेंटिकल ट्विंस हु आर अलाइक। जब फर्टिलाइजेशन होगा कैसा कि एक ही सेल का डिवीजन हो रहा है, एक ही सेल में एक ओवम में, एक एग सेल में एक स्पर्म गया, और बाद में क्या हुआ, उसने डिवीज़न कर लिया, तो वो हमारा ट्विंस कैसे होगा? वो आइडेंटिकल होगा, क्योंकि वो एक ही सेल ने डिवीज़न किया है। एक सेल ने अगर ऐसे डिवीज़न कर लिया तो वो हमारे आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। ठीक है, फिर द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? द ओवरीज यूजुअली रिलीज एन ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब वंस इन 28 डेज। 28 डेज का साइकिल होता है जिसमें ओवरी के अंदर ओवम रिलीज़ होता है हमारे फैलोपियन ट्यूब से। ये देखिए, सी इट इज़ गोइंग टू रिलीज, तो अबाउट एवरी 28 days ओवम इज रिलीज फ्रॉम वन ओवरी। एक या तो इससे होगी या तो इससे होगी, तो एक से ओवरी से रिलीज होगी हर 28 दिन में। देन ऑल अबाउट द सेम टाइम द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकन्स। तो क्या होगा, मूव्स डाउन, यहाँ से जो होगा ये ओवम इट विल मूव डाउन, एंड एट द सेम टाइम द लाइनिंग थिकन्स। फिर जो लाइन्स होंगी वो थिक हो जाएंगी, and the network is going to prepare the uterus to receive the fertilized ovum. ठीक है, if the ovum is not fertilized, ovum fertilized नहीं हुआ, it is not going to get sperm over here, then what will happen? If the ovum is not fertilized, it dies. If it is not going to fertilize, the ovum will die, and the lining of the uterus breaks up. The lining will break up. See, it was
thickened, now it is loosed. Within about 2 weeks, the dead cells and blood pass out of the vagina. It is called menstruation.